Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you? I hope you all are fine. This video is for O level 4. The book name is Easy Diniyat. Easy Diniyat. The book name is Easy Diniyat, and this video is for O level 4. First of all, we are going to start the reading of the chapter. The name of the chapter is Qualities which Allah loves. Qualities which Allah loves, and this chapter is in the second part of the book by name of Akhlaq. So open page number 35. On page number 35 you see this chapter by the name of Qualities which Allah Jalla Jalaluhu loves. Now see the chapter in your video. Al-Akhlaq wal-Adab. Al-Akhlaq wal-Adab. What is the meaning of Al-Akhlaq wal-Adab in Urdu? Akhlaq or Adab. Akhlaq or Adab. The name of the chapter is Qualities which Allah loves. Qualities which Allah loves. What is the meaning in Urdu? वो अच्छाइयाँ जिन्हें अल्लाह पसंद करते हैं. वो अच्छाइयाँ जिन्हें अल्लाह पसंद करते हैं. And the next thing is a love for learning. The next thing is love for learning. यानी याद करने से पढ़ने की मोहब्बत. Now I am going to read the chapter in front of you. Please listen the chapter carefully and please read the chapter with me also. I am reading in this video and you will read when you see this video. Okay, I hope you understand what I am saying and you will cooperate with me, because the basic thing is reading. When we read a chapter, we understand the chapter very well as compared to those who not read the chapter. Okay, so first of all we should recite Bismillahir Rahmanir Rahim, because a hadith narrates that a word which start with Bismillah is more beneficent, is more and more useful for the students. Okay, now love for learning. Long ago there lived a great teacher in Medina. Long ago there lived a great teacher in Medina. Now for your easiness I am going to translate this chapter into Urdu. बहुत पहले की बात है. There lived a great teacher. एक बहुत बड़े उस्ताद रहा करते थे in मदीना में. He was known as Imam Malik रहमतुल्लाह अलैह. वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते थे. Students from all over the world came to learn from him. सारी दुनिया से तलबा उनसे सीखने के लिए आया करते थे. One day while Imam Malik रहमतुल्लाह अलैह was giving a lecture, there was a noise outside. एक दिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सबक पढ़ा रहे थे तो एकदम बाहर से आवाज आई. The people shouted, "Elephant, elephant!" लोग चिल्लाए, "Elephant, elephant! हाथी." The elephant was not commonly known in Arabia. कह रहे कि सऊदी अरब में एलिफेंट को यानी हाथी को आमतौर पे लोग नहीं जानते थे. Most of the people had only heard about it. बहुत सारे लोगों ने सिर्फ हाथी के बारे में सुना हुआ था, but had never seen it in their whole life. बल्कि उसे कभी देखा नहीं था, सिर्फ उसके बारे में सुना हुआ था. बच्चों गौर से सुनिएगा मैं क्या आपको पढ़ा रहा हूं. Listen carefully. The students attending the lecture were very excited to know that was an elephant outside. कह रहे जो तलबा उस वक्त सबक पढ़ रहे थे वो बहुत खुश थे ये जानने के लिए. वो बहुत खुश थे जब उन्हें ये पता लगा कि बाहर हाथी मौजूद है. They all went outside to have a look at the animal. वो सब चले गए बाहर हाथी को देखने के लिए.
Imam Malik rahmatullah alayhi realized that all the students had left except one. इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि सारे तलबा जा चुके हैं मां सिवाय एक के. लेफ्ट एक्सेप्ट वन यानी एक बच्चा रह गया है और बाकी सब चले गए. हिज नेम वॉज याह्या. उस बच्चे का नाम क्या था? याह्या. एंड ही हैड कम ऑल द वे फ्रॉम स्पेन टू लर्न. और वो स्पेन से यानी स्पेन एक मुल्क का नाम है जिसे उर्दू में हस्पानिया भी कहते हैं, इंग्लिश में स्पेन कहते हैं. वो स्पेन से आया था यहां पर सीखने के लिए. Why did not you join the others? याया तुमने बाकी लोगों को ज्वाइन क्यों नहीं किया? याया तुमने बाकी लोगों को ज्वाइन क्यों नहीं किया? इमाम मालिक सेड बाय आस्क इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह. इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने उस बच्चे से पूछा कि तुमने बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं गए? Whereas there are no elephant in Spain too. Whereas there are no elephants in Spain too. जबकि तो स्पेन में भी कोई हाथी तो पाया नहीं जाता. Why did you not go and see what you have never seen before? What did you not go? Why did you not go? Why did you not go and see what you have never seen before? भाई आप क्यों नहीं गए जबकि वो चीज तो आपने भी पहले कभी नहीं देखी हुई. The boy replied, my respected teacher, मेरे मोहतरम उस्ताद, I have come all the way from Spain to seek ilm, knowledge of my deen, religion. उस बच्चे ने क्या कहा कि मैं तो स्पेन से इल्म सीखने के लिए आया हूं. ठीक है, जो मेरे दीन का इल्म है ना, मैं तो वो सीखने के लिए आया हूं. I have not come here to see elephants. मैं यहाँ पर हाथी देखने नहीं आया हूं. मैं तो यहाँ पर इल्म सीखने आया हूं. इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह was very pleased by this young boy. इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा खुश हुए उस बच्चे की, यंग बॉय, उस नौजवान बच्चे की ये बात सुन के. He wished him all the success in future. उन्होंने ख्वाहिश की कि अल्लाह उसे बहुत कामयाबियां दें उसके मुस्तकबिल में. And said, you are no doubt wiser than your age, my boy. बिलाशुबा तुम बहुत ज्यादा अक्लमंद हो अपनी उम्र के मुकाबले में ए मेरे बच्चे. So students, are you understanding what the chapter teach you? आपको चैप्टर क्या बताना चाह रहा है? आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जिस तरह से मैं समझ, उसके अंदर में कितना अच्छा सबक मिल रहा है. देखें आगे और क्या बता रहे हैं. The words have been said by a great teacher like Imam Malik rahmatullah alayh. कह रहे हैं these words have been said, ये अल्फाज कहे गए थे एक बहुत ही अजीम उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से. Attracted by the pleasure of Allah, जो अल्लाह की खुशी के लिए थे. एंड द यंग बॉय, और उस नौजवान तालिब इल्म याह्या के लिए थे. बिकेम अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम इन स्पेन, और वो एक बहुत ही अच्छा उस्ताद बना. स्कॉलर मतलब एक बहुत बड़ा आलिम बना अपने वक्त का स्पेन में. ठीक है. द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज वी हैव लर्नड. हमने क्या सीखा, हमने इस चैप्टर में क्या सीखा. चैप्टर को पढ़ना तो कमाल नहीं है ना, असल तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कि हमने सीखा क्या. व्हाट वी सीक, व्हाट वी गेट द नॉलेज फ्रॉम दिस चैप्टर. वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वी गेन द नॉलेज फ्रॉम दिस चैप्टर. सो इन दिस हेडिंग वी रीड व्हाट वी हैव लर्न. द फर्स्ट पॉइंट इज वी मस्ट लर्न. हमें जरूर याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए. बिकॉज It helps us to understand our deen. हमें सीखना चाहिए क्योंकि ये हमें मदद देता है अपने दीन को समझने के लिए. And the other point is, it builds wonder and respect for Allah as a creator. ये हमें ये सिखाता है, हमारे अंदर इस चीज को बढ़ाता है, अल्लाह की इज्जत को, अल्लाह की बुजुर्गों की बर्तरी को, कि अल्लाह ही सब कुछ बनाने वाले हैं, अल्लाह ही सब कुछ बनाने वाले हैं. It helps us to avoid wrong belief. It helps us to avoid wrong belief and superstitions. What's the meaning of this point? कह रहे हमें ये समझकर ये चीज हमें इस बात में फायदा देती है ताकि हम हट सकें
गलत यकीन से, यानी हमें अल्लाह पर ही यकीन होना चाहिए और हम दीगर सुपरस्टिशन, बुरी बातें, खराफात, हम इन चीजों से बच सकें. एंड नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 37. This is page number 37. It helps us to use Allah's creation to our benefit. ये पढ़कर हमें ये समझ में आता है, ये हमें ये मदद देता है ताकि हम अल्लाह के नाम को, अल्लाह की बनाई हुई चीजों को अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकें. अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं, वो नेमतें इल्म हासिल करने से ही हमें पता लगती हैं कि ये नेमतें हम अपने लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे. The point number two, what we have learned from this chapter is great people have a love for learning. अच्छे लोग हमेशा याद करने को और सीखने को पसंद करते हैं. The third point is every Muslim boy and girl must seek knowledge to become a learned servant of Allah. In this point of the chapter is एवरी मुस्लिम बॉय एंड अ गर्ल, यानी हर बच्चे, मुसलमान लड़के और लड़की को मत सीख, जरूर सीखनी चाहिए नॉलेज, मालूमात, टू बिकम अ लर्न्ड सर्वेंट, ताकि वो अल्लाह का एक अच्छा खादिम, अल्लाह का एक अच्छा मुसलमान बंदा बन सके. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ डीप लव फॉर लर्निंग. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा मोहब्बत थी याद करने से, सीखने से. द कुरान एंड हदीस टीच अस टू सीक इल्म वेयर एवर इट इज फाउंड. क्या मतलब? कुरान और हदीस हमें ये बताते हैं कि आप जरूर इल्म हासिल करें, आपको जहां कहीं से भी इल्म मिले, आप उसे जरूर सीखें. Whoever travels in search of knowledge is in jihad until it returns. यानी जो बंदा जहां कहीं भी है और इल्म की तलाश में है, तो वो जब तक इल्म की तलाश में है वो जिहाद में ही है, जब तक कि वापस ना आए. दिस पॉइंट इज अ वेरी कीन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर एंड वी शुड लर्न दिस पॉइंट वेरी वेल. द नेक्स्ट पॉइंट इज योर नॉलेज कैन नेवर बी टेकन अवे फ्रॉम यू. योर नॉलेज कैन नेवर बी टेकन अवे फ्रॉम, यानी आप जो भी मालूमात आपके पास होंगी वो कभी भी आपसे ली नहीं जा सकती. मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आपने हासिल कर ली तो फिर अब आपसे कोई आपसे छीन नहीं सकता. लर्निंग इज द वे ऑफ अल्लाह, इज अ फॉर्म ऑफ इबादा, वर्शिप. यानी सीखना इन द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह के लिए सीखना ये इबादत है. अल्लाह के दीन को सीखना ये क्या है? इबादत है. Those who truly fear Allah among His servants are those who have ilm. Those who truly fear Allah among His servants are those who have ilm. These lines are so much important line for us. His translation in Urdu is जो लोग अल्लाह से डरते हैं उसके बंदों के दरमियान वो वही लोग हैं जिनके पास इल्म है. यानी जो लोग इल्म वाले हैं वही अल्लाह से डरते हैं. And your chapter is completed. In next video, this video has been completed now. In next video we are going to do our exercise work, page number 38 and page number 39. So when you see the next video, please sit with your copies, your pens, your pencils, and do your activities in your copies. I hope you all understand the chapter clearly, and if you have any question regarding this chapter, so feel free to ask me from Google Classroom, and inshallah I will reply your answer. Okay, now my dear students, this video is going to be completed, and assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.